आगे आ जाओ आप. Then what did I say you? क्यों देखना मना हो गया टीचर को? Last topic is left, seed dispersal. What is the meaning of seed dispersal? क्या होती है seed dispersal? और कोई? Scattering of seeds away from the mother plant or parent plant is known as dispersal. Why dispersal of seed is necessary? Why there should be a dispersal of seed, Arish? शब्द हो गया आपका, सामान भेज दिया आपने मुझे जो भेजना था, कॉपी पीपीटी फाइल. कल 4-5 बजे तक आ रही थी, यू क्लेम्ड इन रिकॉर्डिंग. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे. पेपरों की बात करना है इन नेक्स्ट सेशन. इसी सेशन में हो जाएगा. Scattering of seeds is necessary because if more plants will grow at the same place at the same time, there will be competition amongst them for water, minerals and sunlight. As a result, more the number of plants, more is the competition and less availability of all these resources. So the growth will be stunted, right? So dispersal of seeds is necessary. Right? So, how dispersal could be done? By various agents. Agents are involved. Which agents are involved in this case? This you had done in 5th standard also. Wind. How wind is responsible? In some cases, seeds have wings, like maple and drumstick. In some cases, seeds have hair. Example, madar or cotton. Right? What are you looking at? Sit properly. Then, some are very light in weight so that they can be blown off easily. Right? Right? Then comes water. How they are dispersed in water? This dispersal is very much required in case of aquatic plants. So how the seeds are dispersed? They need to be floated. For floating, they have floating. They need to float. They have outer fibrous coat which keep them afloat. Example, coconut. Right? Is that clear to all? Then beta, there are some other kind of water plants like water lily. They have spongy coat, sponge-like, that help them to be carried from one place to another in water. Then come animals. How animals are helpful in dispersal? Some seeds have hooks or spines attached to their bodies, right? Spines on the seeds, right? These hooks or spines, they get attached to the animal body. When wherever they remove this on getting favorable conditions, they grow into a new plant, right? Example, xanthium, और इसने गोखरू भी दी हुई है. Then
animals, they eat the fruit. When they eat the fruit, they digest the seed also, right? They take the food also, but the seed present in it cannot be digested. It passed out from the excreta as such. Now at that place where the excreta is, the seed grows into a new plant. Clear? Now after this, some more examples are there, like squirrels. If you remember, they bury their nuts in the ground and then they forget, right? And where they have buried their nuts, at that place the new plant it grows. Clear? क्या डॉग बरी नहीं करता? तो वो हमने कर दिया ना, बाय एनिमल्स में आ गया। बरी की बात अलग है, ठीक है ना? There are different cases with different animals. Now come to explosion. What is explosion? Dhamaka, burst open. Some fruits, when they mature, they burst open, and the seeds present in them, they come out and get scattered. This is the process of explosion. Example pea, balsam, kesar. कॉटन कहां से आ गया? कॉटन तो ये है, हेयर वाला, विंड। कहाँ होता है? अरे नहीं, वो कॉटन बॉल्स होती हैं, फ्रूट होता है। दिस इज डिफरेंट। कॉटन बॉल जो फ्रूट होता है वो बर्स्ट ओपन हो जाता है, उसकी लिंट बाहर आ जाती है, उसमें सीड डिस्पर्सल कहां से आ गया? स्पोर्स उसमें जाते हैं, हम सीड की बात कर रहे हैं, राइट? और वो बेसिकली यूनिसेलुलर प्लांट्स की बात थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं में होती है ज्यादा, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, दैट इज डन बाय स्टेम, रूट एंड लीफ, राइट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ सीड्स आर डिस्पर्स्ड। अब सीड अलग अलग जगह पे पहुंच गए हैं। व्हाट इज डन नाउ? लास्ट प्रोसेस, what is germination? Yes, the process in which seed grows into a new plant, that is known as germination. To grow into a new plant, seed needs some favorable conditions. What are the favorable conditions for the seed for germination? Sunlight, air, water, right? What obvious? Soil. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ग्रो करता है? रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल? रूट, बेबी रूट, राइट? देन इट गोज द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या है? बेबी शूट। सीड की जर्मिनेशन जब होती है, ये सीड है, तो क्या ग्रो करता है? रूट। दिस इज रेडिकल। देन इट ग्रोज इनटू प्लूम्यूल, राइट? देन बेटा plumule come out of the shoot, plumule come out of the soil, and first leaves appear, they start photosynthesis. Now the growth of the plant start and is able to prepare its own food, right? With this we have finished this chapter. Any doubt in this? No? Online? Erase karo. Now we are going to start physical and chemical change. आपको कौन से इक्वेशंस करवाई है? दिखाओ। रस्टिंग ही होनी है, वो तो आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करवाई है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दे आर नॉट इन द सिलेबस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदरवाइज करवाई है, बट स्पेसिफिकली दे आर नॉट मेंशन्ड।
हाँ जी, shall we start? हाँ जी, physical and chemical change. बच्चे, you see so many things around yourself that keep on changing every day. For example, you tear the pieces of paper. What do you see? There are many pieces of paper. Is this a change? Which type of change? Because this change involves change in shape, size and color. No any chemical changes there. But you cook a vegetable. Is that any type of change? This is a chemical change. So there are lot of changes that are taking place in our daily life, right? So these changes, whether they are physical or chemical, we should know. So first question arises, what do you mean by physical or chemical change? What is a physical change? बस 3 बच्चों को आता है इस क्लास में काम. Yes, परी. What is a physical change? एक तू परी है. चलो, a change in which there is change in shape, size and color. In case of chemical change, there is whole new product is formed or there is chemical change. No new product is formed और इसमें न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. निकल जा बेटा इधर से बानी. न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. Generally reversible. It is not necessary, but it is generally reversible. And in this case, it is irreversible. You know how to sit? Right? Any other difference? This is generally, because reversible है तो temporary change. And chemical is any other? वो तो हमने बोल ही दिया. Here there is no change in energy, no involvement of energy is there. In this case, either more energy is produced or there is loss of energy. So energy change is there. Right? Is that clear? बच्चे, आपको एनर्जी के रिगार्डिंग पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक लॉ ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज फिक्स्ड. इट इज नॉट चेंजिंग. बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, either there is loss of energy or there is gain of energy. जो मर्जी हो, the energy, actual energy does not change. Right? जैसे आपने ऑक्सीजन यूज अप करी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी, राइट? तो उसी तरह उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने इनहेल करा and oxygen release करी. Means total amount of energy was same है. In the universe it remains same, right? हाँ, processes में, reactions में energy gets. Angelina is not here. दीदी इधर नहीं है एंजेलिना. ऊपर है ऑफलाइन क्लास में. So
टोटल एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड। सो इसलिए हम इधर बात कर रहे हैं एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मींस ना एनर्जी का लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। और इस केस में इधर तो रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी, राइट? इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स एंड और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हो चुके हैं। जाइए जी, एग्जाम्पल्स यू कैन से। एक और चीज, दिस केमिकल चेंज it is caused due to chemical reactions. When chemical reactions are involved, chemical change will take place. For example, एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। If I keep the ice under the sun, it will melt into water. Immediately I am keeping it in the freezer for few hours. It will again turn to ice. Which type of change is this? Chemical reaction is involved. Energy is gained or lost. But here this reaction is reversible. It can be converted. In the same way, if I melt the wax and again I cool it, you can again obtain the wax. It is also the reversible reaction. Right? Physical change. But if I keep the iron in the air, it will get rusted. There will be formation of something on the iron. Right? But this cannot be reversed. आप उस iron को लाके अंदर रख दो, that change cannot be reversed. This हटा सकते हैं, हट सकती है, but केमिकल रिएक्शन इज देयर, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, वापस वैसे तो नहीं आ सकता, लाइक राइट? वो है टू सेव इट, टू प्रिवेंट इट। रस्टिंग को आप रोक सकते हो गैल्वेनाइजेशन से, पेंटिंग से, राइट? रस्टिंग हो गई तो केमिकल रिएक्शन इज डन। उसके बाद जितनी अगर सारी नहीं हुई उसको आप रोक रहे हो, राइट? बट केमिकल रिएक्शन को नहीं रोक रहे हो, उसको एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकते हो। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, पेंट करते हैं हम, एक कोट बना देते हैं आयरन के ऊपर, राइट? व्हेन दैट कोट इज देयर, एयर और वाटर डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आते, सो रस्टिंग इज नॉट डन। ठीक है? बट रस्टिंग हो चुकी है, उसको वापस पेंट करके तुम आयरन नहीं कर सकते हो। Is that clear? चलिए, let us start. First of all, उसने कहा है a change, chemical change in which one or more new substances are formed. Where is just a chemical change start करते हैं। नहीं, sit down. हाँ जी, कौन? You can leave. हाँ जी, what is a chemical change? जैसे कि मैंने बताया, one या one से ज्यादा new substances can be formed when a chemical reaction takes place. तो बच्चे, उसने कहा है, एक सिंपल सा रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, इफ यू ऐड आयरन नेल, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें इफ यू ऐड आयरन नेल, राइट? इसका कलर पहले क्या था? अब व्हाट विल हैपन, न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म, दैट न्यू प्रोडक्ट इज आयरन सल्फेट प्लस copper is left, right? And this new product is green in color. Here in this chemical reaction, green color is getting changed. तो first क्या होता, chemical reaction से क्या change आई? Color is getting changed, new product is formed, right? और copper का जो है brown deposit can be seen, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा,
आयरन जो है ग्रे कलर का है, ब्लैक या ग्रे व्हाटएवर, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट है बर्निंग से क्या होता है। इफ बर्निंग ऑफ अ मेटल इज देयर, उसने आपको एग्जांपल दिया मैग्नीशियम मेटल की, उसने कहा मैग्नीशियम रिबन ले लो आप, Mg ले लिया हमने, इसको हमने बर्न किया। व्हेन वी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम बैलेंस करें तो इधर आ जाएगा ये, राइट। सो बच्चे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एश, एश पाउडर फॉर्म में आएगा, राइट। सो हाँ जी, व्हाइट व्हाइट कलर की होगी इसकी ऐश या व्हाइट पाउडर होगा। हाँ जी बेटा, मैं करने लगी हूं। दिस व्हाट यू हैव टू डू इन दिस प्रोसेस, मैग्नीशियम आपने ले लिया, मैग्नीशियम रिबन, इसको आपने जब बर्न करना है तो व्हाइट कलर का ये पाउडर रिलीज करेगा, ठीक है। उसको आप यू विल कलेक्ट इट इन अ चाइना डिश। ये जो आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड it is allowed to mix in water, वाटर में हमने इसको मिक्स कर लिया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अब 2, ये देखो H2O है ना, इसका ये हाइड्रोक्साइड बना OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, ये दो एक एक्सपेरिमेंट करने से व्हाट डू वी फाइंड, वी फाइंड दैट ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन न्यू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। इसमें हमने मैग्नीशियम लिया था, इसको बर्न करा, नया प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, नया प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी अनवी, डू यू हैव एनी डाउट? मैम फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन के पास जो O2 था वो टू कहाँ पे गया उसका? कौन सा? ये वाला मैम Mg+O2 ये देखो फॉर्म्स ना, MgO। ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आप बैलेंसिंग पे मत जाओ, वैसे मैंने बैलेंस कर दी इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, 2 मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स बने, ये बैलेंस हो गया है। ये O2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इधर ये बैलेंस हो गया विद हेयर, राइट। नया प्रोडक्ट बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? मैम बट वो तो Mg के साथ है ना 2। अरे Mg के पास थोड़ी है वो, हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 Mg के लगाए। Mg तो ये होता है, ये जो 2 लगा है इट मींस 2 मॉलिक्यूल्स, या इन अदर वर्ड्स 2 पीसेस हमने दिए, राइट। ये ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन बनती तब है जब उसके पास 2 ऑक्सीजन होंगे, एक मैग्नीशियम, ये 2 ऑक्सीजन पड़े हैं मेरे पास, राइट। यस ये इसके साथ आ गया। अगर मैं 2 पीसेस लूंगी तो एक और Mg होगा, इसका मतलब इट विल रिएक्ट विद दिस, राइट। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या बना, यानी कि इज दैट क्लियर? मतलब कि Mg बस एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, दूसरे के साथ नहीं करता। बेटे तभी तो हमें यहाँ 2 लेने पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन 2 थी, राइट। अभी बैलेंसिंग पे मत जाओ, यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, 9th 10th में जाके हम बैलेंसिंग करते हैं। जस्ट लर्न द इक्वेशंस एज सच। ये बैलेंसिंग है आपको 9th में जाके सारी। नहीं नहीं, ये नहीं करना आपने, ये उसको समझाने के लिए था। हाँ बोलो बेटा। बेटे क्योंकि अभी आप सिर्फ इक्वेशन लर्न कर रहे हो तो यू हैव टू राइट, नंबर कट सकते हैं। अगर मैं नहीं चेक करूंगी, कोई केमिस्ट्री वाला चेक करेगा, ही विल डिलीट, ही विल कट योर मार्क्स डेफिनेटली।
तो अभी सिर्फ आपको इक्वेशंस याद करनी है, बैलेंसिंग में मत जाओ कि ये कहां से आए कैसे आए, इसलिए एज सच लर्न करो इसको, राइट। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया बैलेंसिंग होती कैसे है, हमने मॉलिक्यूल्स आयंस सब बराबर करने हैं, राइट। देन आ गया, अब उसने कहा ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, दिस इज एसिडिक और बेसिक, हाउ डू वी नो? देन वी हैव टू टेस्ट इट यूजिंग द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। पहले इसने लिया रेड लिटमस, देन इट टेक्स ब्लू लिटमस। जब रेड लिटमस ने डाला तो क्या हुआ? इट चेंजेस इनटू ब्लू, तो इट इज बेसिक। अगर ब्लू में डाला तो इट डज नॉट चेंज, राइट, इट मीन्स इट इज बेसिक। या सिंपल लिटमस पेपर लो, उसमें ऐड करो, इफ इट चेंजेस टू ब्लू इट मीन्स इट इज बेसिक, इफ इट चेंजेस टू रेड इट इज एसिडिक, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनवे। अब मैं थोड़ा सा आपकी बात का आंसर दूंगी। ये जो रिएक्शंस हुए अभी मैंने आपको समझाया, एक्चुअली ये रिएक्शंस होते कैसे हैं। इट इज ड्यू टू, अगर आपको एक सिंपल वर्ड्स में लिखना हो, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन होता कैसे, नया प्रोडक्ट कैसे बनता है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंगस्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर टू ऑल? सिंपली जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, राइट, इज दैट क्लियर? देन इफ आई रिएक्ट इट विथ ऑक्सीजन, ओके, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इट विल डू, इट विल गिव राइज टू, अरेंजमेंट कैसे होगा? ऐसे, एक H2O बन गया, एक और H2O बनेगा, क्योंकि दो है हमारे पास। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ नहीं आया? क्यों? ये सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन है। अब इनका आपस में अरेंजमेंट होगा कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल को अरेंज कर दिया, जैसे मर्जी अरेंजमेंट हो, राइट, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट इज, एक मिनट ही रह गया। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है फटाफट पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं। इरेज करो बोर्ड। बेसिकली तो कल ही आएंगी क्वेश्चंस। We will complete rusting and all by tomorrow. The chapter will be finished. उसके बाद बताओ क्या स्टार्ट करना है? जो क्या, कौन सा चैप्टर है आपका? एसिड बेसिस तो नहीं है इस टर्म में? हाँ, हाँ जी, ठीक है। ओके, एनी डाउट? Quiet. You have taken your copy? हाँ जी बेटा, नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। During a chemical reaction, please note down. During a chemical reaction, a new product is formed. Along with it, there may be a number one, heat, light, or any other radiations given off or absorbed
a new product is formed along with these, maybe number one, heat, light, or any other radiations may be given off or absorbed. Number two, sound may be produced. Chalo, we will do tomorrow. It's over now.